Hello friends, welcome back. This video is all about zigzag and zigzag on our charts. So zigzag is important tools we are going to use and fires. This is also platform I am using is fires. आपके पास platform जो हम दिखा रहे हैं वो fires का है and in fires how to use or how to draw zigzags. हम मैनुअली भी करेंगे और इंडिकेटर भी है जिगजैग फायर्स में उस फायर्स जिगजैग के फायर्स इंडिकेटर्स को यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैनुअली कैसे करना वो देख लेंगे बट इसका जो है जिगजैग है फायर्स में फंक्शन एफएक्स इंडिकेटर लिस्ट में आपका इंडिकेटर लिस्ट आपका एफएक्स के अंदर आता है मेनू में. जिगजैग सबसे लास्ट है, इसको क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आपको जिगजैग मिल जाएगा. सो यहाँ पे दो इंडिकेटर लिस्ट आ रहा है, एक वॉल्यूम आ रहा है, एक जिगजैग आ रहा है. कैश मार्केट में आपका निफ्टी 50 का वॉल्यूम नहीं आता है, स्टॉक्स के वॉल्यूम्स आते हैं. निफ्टी 50 जो इंडेक्स कहलाता है इंडेक्स में नहीं आते. हम हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स है, एनर्जी इंडेक्स है. ये सारे जितने भी इंडेक्स है उन सब के लिस्ट है हमारे पास. आप देख सकते हैं मैंने एक इंडेक्स फोल्डर में ये सारे लिस्ट बना रखे हैं. इंडेक्स फोल्डर बनाने का एक फ़ायदा ये होता है एक ट्रेडिंग के टर्मिनल्स में जब मार्केट मूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो निफ्टी 50 को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करना है. देन दिस ऑल इंडाइसेस should move in that directions. If this is not moving in either direction, suppose bank nifty is moving in up direction, commodity is moving in down direction, then our nifty will not be in a particular in a single direction, that is not in uptrend or downtrend. It will be in a mixed direction. Either for a few minutes it will give buy signals, then it will give sell signals, then buy signal, then sell this will not a continuity pattern. Just like this is a continuous pattern, this is a perfect downtrend. So I we need this type of formation. So for this type of formation either should this types of or sector, this sector we call as a sectoral indices should be moving like that only, then only our nifty will move like that. If sector is moving like that, our nifty will also move like that. So monitoring nifty with reference to sector and then stock, it's all about the hierarchy of our market. Our market depend on all these three things. If one trader only invest in stock or watch stocks, he might be fruitful, but someday he will lose, and loss should, we don't know how much he can lose it. But when someone properly analyzing and doing things right, then there is less chance of getting lose out from the money from the market. Market is for everyone. This chart I am seeing, when when you are going to live market, आप जब लाइव मार्केट में बैठोगे आपको भी यही चार्ट दिखेगा जो मेरे को दिखता है, बट आवर इंटरप्रिटेशन गोes in a different ways. Somebody will think this selling will continue from here only. Somebody think okay there is this buying can and the market will go up. So in this way we are all interpreting. बट मार्केट में जो इंटरप्रिटेशन है वो मार्केट जब खत्म होता है उसके बाद देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ओके मार्केट ने ऐसा काम किया, मार्केट बिहेव इन दिस मैनर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 315. सो इन द लाइव मार्केट आवर टास्क इज टू आइडेंटिफाई वेयर द पावर इज बीइंग जनरेटेड. आपका मार्केट में पावर किस तरफ जनरेट हो रहा है, इन द अप डायरेक्शन और इन द down direction. Either in up direction or down directions the power should be generated, and we should know where the power coming from, and so where the power will come from. That power is coming from the sectoral indices only. This all sector only in two or three sectors, if they move in up directions and one or two in
down direction and few are in no either direction, buying selling Nifty, then Nifty depending upon the majority of the sector index moving, Nifty will move in that direction. So one by one, if we check it that in this part, if this is moving down, this is moving down, so why this upward come? So when we check out the auto sector, let's do it one by one. After that we will go to the, after seeing the all stocks, we will go through the zigzag, how to draw, how to check the zigzag formations and that. Now see this is auto sector, it came down, it's gone up, but it's again nothing, it's in the sideways, neither go up or down. Okay, let's look at the bank. So it's moving down and then it's moved up. Okay, this as compared to a Nifty, it shows the character of the bank Nifty. Bank Nifty shows the character of Nifty only. So now here we are having option in fires. We can split our screen. This is one of the main features of fires, which is also provided by the trading view. So this chart layout is all about the from the trading view only. This all features of all the trading view are well taken by fires, and this features is very good, so that we can split our screen in two halves. Now this is my splitting of screen. Now in one part I am entering that Nifty 50. आप यहाँ पे Nifty 50 के चार्ट देखेंगे. In the next window we will see all other chart, majority chart. So Nifty 50, आपने बैंक निफ्टी को देखा कि बैंक निफ्टी भी इसकी तरह ही मूव किया जैसा Nifty 50 मूव किया. कमोडिटीज को देख लेते हैं, और ये हमको ध्यान रखना है कि कितने चार्ट निफ्टी की तरफ है. नाउ सी, ये नीचे गया, फिर ये ऐसे, ये ऊपर मुड़ा, मतलब ये जैसा मूव किया ऑलमोस्ट इसने भी वैसे ही मूव कर रहा है. एट दैट इंस्टेंट कंजम्पशन ऑलमोस्ट वही काम किया जो निफ्टी 50 कर रहा है. एनर्जी का सबसे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी इज दैट कि एनर्जी और निफ्टी का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है जब ये लोअर लो फॉर्मेशन कर रहे हैं. जैसे कि बैंक निफ्टी क्या किया था कि लो नीचे चला गया था, लेकिन एनर्जी ने नहीं किया, और इस वजह से एनर्जी सेक्टर का जो हाई है वो डे हाई के ऊपर गया और ऑलमोस्ट एक बीट किया, पिछले हाई के ऊपर जाने की कोशिश किया स्विंग के. दैट्स गुड. तो अगर आप एनर्जी सेक्टर में ट्रेड करते हैं उस दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे में, आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट एनर्जी सेक्टर में देखने को मिलता है इस जगह से. कुछ स्टॉक्स में इतने गए होंगे मूवमेंट जो आप देख सके, बोलेंगे कि हाँ इसमें मूव हुआ है. तो सो यहाँ तक मूवमेंट कुछ नहीं है. मूवमेंट आया कब आया, जब निफ्टी ने यहाँ पे 145 पे ब्रेक किया कैंडल, और 145 245. तो यहाँ से मेरे को मूवमेंट चेक करना है सारा कुछ, क्योंकि देर से चेंज हो गया है. अब फाइनेंस पे आते हैं. फाइनेंशियल सेक्टर से फाइनेंशियल ऑल्सो बॉटम बराबर है, 1 2 3 बॉटम्स मेक किया, उसके बाद ऊपर. एफएमसीजी सो सी एफएमसीजी निफ्टी में, निफ्टी का यहाँ पे बॉटम चल रहा था, एनर्जी सेक्टर का बॉटम चला, फाइनेंशियल सेक्टर का बॉटम चला, बट एफएमसीजी का लोअर लो चला. ही इज इन द लोअर लो कंडीशन. उसके बाद ये ऊपर आया. लेट्स चेक आउट वेयर द निफ्टी आईटी. सो निफ्टी आईटी हाई, देन इट्स मेक द लोअर लो, और उसके बाद हाई ऊपर गया, फिर नीचे. तो अभी तक 3 ऐसे सेक्टर मिल गए जो निफ्टी के साथ चल रहे थे. लेट्स गो फॉर द मेटल. से मेटल भी ऑल्सो लोअर लो है, फिर इसके बाद ऊपर गया हुआ, और जब ऊपर गया तो फिर ऊपर चला गया. फार्मा lower low formation. So only 3 sectors we see that the low of that sectors are well shaped
टेकन बाय द निफ्टी, आपके 3 सेक्टर ने निफ्टी को ऊपर मूव कराया। और कौन कौन से सेक्टर हैं? फाइनेंशियल, एनर्जी, एफएमसीजी, एफएमसीजी नॉट, so bank, this one is bank, 3 dots, uh, energy, 3 dots, completed, financial, well taken by it, whatever the commodities, now it's lower low, consumption lower low, infra is there, infra, so infra also making same pattern as nifty, and it's gone up. So when we talk about the nifty and sectoral index, nifty and bank nifty are two indices along with the finance sector, financial service indices, sectoral indices. From there we can trade in the option and futures, but other sectors not. So from other sectors we have to trade in the stocks. आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपको सारे सेक्टर मिलते हैं, और ऑप्शन और फ्यूचर के लिए आपको बैंक और निफ्टी में आपको बहुत, और फाइनेंशियल सेक्टर में आप ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो ऑटो सेक्टर में अगर फ्राइडे को जिसने ट्रेड किया होगा बाय और सेल पोजीशन, ही विल विन बी मैस। उसे ये नहीं पता चला कि प्राइस किस तरफ मूव हुआ, ऑटो सेक्टर का किस तरफ गया है ऑटो सेक्टर का प्राइस, क्योंकि उस दिन तो उसने साइडवेज हो गया। जिस तरह से निफ्टी ने मूवमेंट किया था वैसा मूवमेंट नहीं हुआ, ये पूरा साइडवेज रहा। नो डाउट पहला लो बनाने के बाद दूसरा लो के बाद तीसरा लो ऊपर ही था, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। प्राइस अगर ब्लॉक है इतना ऊपर मूवमेंट का, तो इट्स मीन्स कि अगर इस लेवल को अगर ये ऑटो सेक्टर जिस दिन तोड़ेगा, और तो वो बहुत तेज सेलिंग आएगा ऑटो सेक्टर में। प्राइस अगर ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस ऊपर, और अगर इसको ऊपर जाना हो तो यू शुड ब्रेक करे इस लेवल को, फिर उसके बाद यहाँ से कहीं बाइंग होगा तो फिर ऊपर जाएगा। लेकिन नीचे का बहुत अच्छा चांस है कि जब ऊपर जाने के इस केस में अगर ऊपर नहीं जा पाया तो नीचे वाले जाने में इस केस में देखेंगे कि क्या पता नीचे चला जाए, और अगर नीचे जाते हुए दिखा तो ऑटो सेक्टर इन द सेलिंग मोड, जिस दिन सेल करना हो तो ये बेस्ट है। सो तो ये तो हो रहा है सेक्टर्स का, कि हमने सेक्टर कैसे कैसे वॉच किया। अब इसी सेक्टर के बेसिस पे मैं जो है एनर्जी सेक्टर पे देखने के कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं कि हाउ एनर्जी सेक्टर परफॉर्म ऑन दैट डे। कि हमको एनर्जी सेक्टर का पता है कि एनर्जी सेक्टर बहुत ही अच्छे से मूव किया था, जस्ट लाइक निफ्टी मूव किया, ऊपर से नीचे से ड्रॉप बना करके और ऊपर चला गया। इन द सेम सिनारियो, सेम पैटर्न, क्या मेरे पास ऐसा कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम कहते हैं, और तो निफ्टी 50 में मेरे पास एनर्जी सेक्टर के 3-4 स्टॉक्स हैं, उन सबको हम एक वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले रिलायंस का। ना वी ऑल नो रिलायंस, अंबानी ग्रुप, और हमारे इंडिया का मेजर पार्ट इंडस्ट्री के इसमें कहेंगे तो रिलायंस और अंबानी दो ग्रुप ऐसे हैं। सो रिलायंस में देखिए खुल गया, ऐसे ऐसे ऊपर मूव किया, बट जब ये मूवमेंट हुआ कुछ खास नहीं हुआ, नथिंग, पसंद नहीं आया। ओएनजीसी भाई ऐसे ओएनजीसी कुछ कर रहा है। ओएनजीसी का मूवमेंट देखिए, यहाँ से नीचे से ओपन होता है, और ये जो लो बनाया वो लो वही एक लौता लो रह गया। यहाँ पे तो 3 लो लगे, इसका तो लो लगने का नाम ही नहीं है, तो ऊपर जाके लो बना रहा है। इसको लो तो यहाँ बनाना था, लेकिन ये ऊपर इतना डिस्टेंस वो पहले कवर ऑलरेडी कर चुका है, तो इसके पास इतना स्ट्रेंथ है कि ये डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। और अगर इसका सेक्टर अगर ऊपर निकलेगा तो ये ऊपर बहुत तेज निकलेगा। ये ध्यान रखना होता है, ये सोच रखना पड़ता है मार्केट में ऐसे इंट्राडे ट्रेडर के लिए, कि हमारे पास अगर सेक्टर मेरे पास तीनों चीज़ लो नहीं तोड़ रहा है, एक ऐसा स्टॉक है जिसका पहला लो यहाँ बना, दूसरा लो यहाँ कहीं बन रहा हो, या ऊपर यहाँ बन रहा है उसके बाद गिर रहा है, और इसका लो यहीं पे अटका पड़ा है, लेकिन अगर ये नीचे टूटेगा इट विल हॉल्ट, ये इसी तक प्राइस गिरेगा और ये नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर लेवल जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे एक बुलिश मूव मिला मेरे को अराउंड, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को बुलिश मूव मिला 210 पे, तो मैं 210 का कैंडल यहाँ पे देखूँगा कहाँ पे, ऑलमोस्ट अराउंड हेयर 210 215 है यहाँ पे।
तो यहाँ पे अगर 133 की आपकी बाइंग होती है तो आपको मिलता है 133 का बाइंग है, तो 133 और ये हाई लगा 133 फॉर 1 रुपीज़ 15 पैसा आपको ये स्टॉक में इंट्राडे में आपको मिलता है। और व्हाट इज द स्टॉप लॉस? आपके स्टॉप लॉस जस्ट 50 पैसा 25 पैसे होंगे। यहाँ से 50-25 पैसे आपका स्टॉप लॉस, 25 पैसे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1 रुपीज़ 14 पैसे का। इसमें से आप 25 पैसे और 50 पैसे आप मार्केट को देने के लिए तैयार हैं कि अगर आप इतना तैयार हैं कि मैं 50 पैसे और 25 पैसे में मार्केट को दे देता हूँ तो मेरे को रिस्क जो है मेरा 25 पैसे का प्रॉफिट जो है वो 1 रुपीज़ का है। तो ये अगर आप रिस्क मार्केट में रुपया देने को तैयार है तो ही आप ये प्रॉफिट निकाल पाएंगे, अदरवाइज हमेशा इसी सोच पे रहेंगे कि मेरा इतना लॉस हो जाएगा या नहीं होगा कि नहीं होगा। सो ट्रेड करना है तो लॉस अपने साथ रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर, लेट्स लुक आउट द बीपीसीएल। नो डाउट इन नेगेटिव में फिर भी नो, जो ट्रेड नेगेटिव में है साइडवेज है जस्ट ऑटो सेक्टर की तरह। तो हमारे पास जो स्टॉक्स मूव किए वो कौन किए हैं? एक ओएनजीसी है, समथिंग ये कुछ है, ठीक है, ये 1 2 3 हाइट, लेकिन इसने मूवमेंट नहीं दे पाया इसकी तरह। आईओसी, टाटा पावर ग्रिड इज समथिंग 1.36। so this stock, this is your continuous uptrend stock with pattern formation of Dow theory and the pattern. Here we can look at how this how this movement in upward direction happening, आपका इसका मूवमेंट ऊपर में किस तरह से जा रहा है, हम इस चीज़ को चेक करेंगे। यहाँ पे हमको दिख सकता है कि हमारे पास यहाँ पे जो मूवमेंट है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसी पैटर्न को हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चार्ट ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ से फिर हाई किया, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे आ रहा है। सो हेयर वी कैन सी देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न। ये आपका इस पैटर्न को बना रहा है। जो कोई स्टॉक इस पैटर्न को बनाता है आइदर इन अप या फिर डाउन में, इस तरह से कंटिन्यू पैटर्न, इसी पैटर्न स्ट्रक्चर को हम लोग, इस टूल्स को हम लोग जिगजैग कहेंगे। इस जिगजैग में ये होता है कि ये जो हाई बन रहा है, इस हाई को ब्रेक होना चाहिए, ऊपर की तरफ दिखना चाहिए कि इस हाई के ऊपर एक हाई गया और ये जो लो है इस लो के ऊपर एक लो है। ये लो कब कंफर्म होता है? जब इस हाई के ऊपर अगला हाई लगता है कि हाँ अब इसके नीचे मार्केट नहीं गया तो ये हाई ऊपर चला गया, फिर इसके ऊपर हाई चला गया। इस तरह से हाई 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 बनाता जाएगा, लो 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 बनाता जाएगा और मेरा एक जिगजैग पैटर्न बनता जाएगा। तो मार्केट में ये जिगजैग होना देखना होता है कि इसको हम कैसे चेक करें। सो इतने अभी तक 4-5 हमने एनर्जी सेक्टर के स्टॉक देखे और एनर्जी सेक्टर काफ़ी अच्छा पैटर्न निभाया था। तो मेरे को एक स्टॉक ऐसा नज़र आया जो जिगजैग फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब आपको मार्केट में आप जब सारे चार्ट्स को एनालाइज देखेंगे तो आपको सबसे पहला इंडिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट और समथिंग दिखना चाहिए। तो मेरे को जब ये पता है कि यहाँ से यह जिगजैग मूवमेंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे सेक्टर ने 2.5, 2.5, 2.10 पे बुलिश मूव दिया है, तो क्या यहाँ पे 2.5, 2.10 पे मैं बुलिश मूव देख सकता हूँ? 230, दिस इज योर 220, दिस इज योर 215, दिस इज योर 210, 207 रुपीज़। मार्केट 315 पे क्लोज होता है, 35, 310, 209। तो अगर आपकी एंट्री 210 पे 25 पे है, 207.90, 208 रुपीज़, तो मार्केट को एंड कर रहे 209.70, 209 रुपीज़ पे। तो 208 से 209 इसमें भी आपका 1 रुपीज़ का मूवमेंट है और विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 पैसा, दैट्स ऑल। 207.50 कि 207.50 के नीचे प्राइस गया, आप मार्केट से आउट हो गए। और 208 का एंट्री है, तो आप उसके ऊपर से जो भी प्राइस आपको मिले, 50 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, जो भी मिले, तो ये कंफर्मेशन है। तो ये कंफर्मेशन अब मार्केट, अब जब हम ट्रेड करने हैं चार्ट देखेंगे, मार्केट यहाँ से 915 से शुरू होता है
और ये ऊपर ऐसे जाने, तो एंट्री अब यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, ये चलता रहता है। सेक्टर देखे ना देखे, दैट डिफरेंट केस। हम अगर सेक्टर नहीं देख रहे और इसके हिसाब से एंट्री कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, नो डाउट। बट अगर आपने इस स्टॉक को ले लिया है, आप सेक्टर भी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, इट्स ऑल अदर केस। जब आप इस स्टॉक को देख रहे हो चार्ट में, तो आप इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करते हो कि मेरा प्राइस ऐसे मूव है, तो फ्रॉम आप कहीं से भी एंट्री बनाओगे इसको, तो कोई एक लेवल से ले लेते हैं कि आप मान के चलिए यहाँ से एंट्री बनाए। इस लेवल से अगर आपने बाई किया कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, किसी टाइम पीरियड में, तो आपको इस टाइम पीरियड में बाई किया, तो आप यहाँ पे इतने नेगेटिव हो, और ये आपका ये जो कैंडल बना, ये जो विक्स बन रहा है, ये स्टॉप लॉस ले रहे हैं बहुत लोगों का, क्योंकि वो स्टॉप लॉस 50 पैसा 1 पैसा ऐसे रखे होंगे, 1 रुपीज़ और 50 पैसा, वो हिट किया, मार्केट से आउट। ऊपर में टारगेट प्राइस ऊपर निकलता है, टारगेट बुक करे नहीं करे, फिर से वापस अंदर। तो हमको इतना ध्यान रखना है कि ये सब क्या है, कि इसको किसी तरह से जज करें, कौन से स्टॉक को प्रीफर करें, ये जानना जरूरी होता है। इस पैटर्न में, यहाँ पे किस पैटर्न में मेरे को अभी तक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड वाला पैटर्न क्लियर नहीं है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे डाउन ट्रेंड का पैटर्न क्लियर है कि ये प्राइस इस लो के नीचे है, देन इट्स टू गो डाउन। यहाँ पे भी मेरे को इंडेक्स में दिख रहा है कि जब तक ये इसने जब डाउन ट्रेंड कंफर्म किया, इसने नहीं किया, जब मेरा सेक्टर नहीं कंफर्म कर रहा है डाउन ट्रेंड का, तो मैं डाउन ट्रेंड के स्टॉक को क्यों देखूं? मैं उन स्टॉक को देखूं जो कि इसके साथ मूव कर रहा है, और इसी के सहारे फिर इंडेक्स मूव करेगा, जो कि ब्रॉड इंडेक्स कहलाएगा, निफ्टी 50। तो मेरे पास अब मुझे अगर देखना है कि मेरे पास बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कि निफ्टी 50 कैसे मूव कर रहा है, सेक्टर मेरा कैसे मूव कर रहा है, स्टॉक मेरा कैसे मूव कर रहा है, दिस इज माई। अब मैं तीनों चीज़ों को एक साथ रखने की कोशिश करता हूँ। दिस इज माई एनर्जी और मैं इंडेक्स, यहाँ पे हम देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स को। या सो यहाँ पे निफ्टी ने भी यहाँ पे लोअर लो नहीं बनाया, सेक्टर ने भी लोअर लो नहीं बनाया, बट मेरा स्टॉक बना दिया इस जगह पे। जब इस जगह पे सेक्टर ने बनाया और मेरा ब्रॉड मार्केट और सेक्टर ये दोनों ने नहीं बनाया, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है लोअर लो स्ट्रक्चर के इसमें ट्रेड लेने का। आई हैव टू वेट कि मेरे को निफ्टी और सेक्टर कंफर्म करे, जैसे कि निफ्टी ने यहाँ पे लोअर लो कंफर्म किया, लो के नीचे लो चला गया, सेक्टर ने नहीं कंफर्म किया। तो सेक्टर नहीं कंफर्म कर रहा है, निफ्टी कंफर्म कर रहा है कि ये निफ्टी नीचे गिर गया, सेक्टर नहीं गिरा। तो मेरे लिए अभी भी मेरे को 100% या 90% में ये 10% मेरे दिमाग में रह गया कि जब सेक्टर नीचे नहीं गया, ठीक है, ब्रॉड मार्केट चला गया नीचे, तो इसको भी जाने दो। जब ये नीचे ब्रॉड मार्केट गया है, तो ये भी जाएगा नीचे, और ये नीचे जाएगा, तो फिर मेरा स्टॉक इसमें सेलिंग आ जाएगा, इसमें बाइंग नहीं आएगा, इसमें सेलिंग आ जाएगा। अब इसमें सेलिंग आना है, तो मेरे को इस सेक्टर में भी सेलिंग चाहिए, जो कि लेकिन जैसे सेक्टर ने इस हाई अप ट्रेंड किया, ऊपर गया, हाई के ऊपर हाई गया, तो मेरे को यहाँ से अब बाई हो जानी चाहिए इस जगह से 210-25 पे। फ्रॉम दिस लोकेशन इट शुड गो अप अप अप। जब ये ऊपर नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम है ना। निफ्टी ऊपर जाने लग गया, यहाँ से सेक्टर वहाँ से ऊपर जाने लग गया, मेरा स्टॉक नहीं जा रहा है। तो मैंने आज के लिए गलत स्टॉक चुना ट्रेडिंग के लिए, कि नहीं मूव हो रहा है। और यही स्टॉक में अगर मेरे पास मार्केट के टाइम पे मैं एनर्जी सेक्टर का मॉनिटर कर रहा होता और मैं पावर ग्रिड स्टॉक को देख रहा होता विद द फॉर्मेशन, ओके, कि ये निफ्टी लोअर लो बना दिया, इसने भी कुछ अभी लोअर लो नहीं बनाया, पर ये अप ट्रेंड में है।
अगर इसका अब निफ्टी और सेक्टर में अपट्रेंड स्टार्ट हो जाता है तो मैं इस स्टॉक में बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अपट्रेंड स्टार्ट हुआ तो मेरा यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गया, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, दिस इज द प्रॉफिट। नाउ ये जो बाइंग का एंट्री यहाँ पे मिल रहा है, इट विल कॉल्ड एज ए कंफर्म एंट्री, दिस विल कंफर्म योर ट्रेड। आप कोई भी ट्रेड में एंट्री करें, अपने ट्रेड को कंफर्म कीजिए कि हाँ ये मेरा कंफर्म एंट्री है, ये मेरा कंफर्म स्टॉप लॉस है, ये मेरा कंफर्म टारगेट है। द वर्ड कंफर्म शुड बी इंक्लूडेड इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। आपके ट्रेडिंग स्टाइल में कंफर्म वर्ड होना चाहिए। अगर कंफर्म वर्ड इंक्लूडेड नहीं हो पा रहा है, इट्स मीन्स आप डायलिमा में है कि मैं बाई करूं कि सेल करूं, बाई करे कि सेल करूं। फॉर ट्रेडिंग इन कैश मार्केट इंट्राडे, आइदर बाई पोजीशन और सेल पोजीशन, आपको ब्रॉड मार्केट, निफ्टी 50, सेक्टर पोजीशन, आइदर एनर्जी और एनी सेक्टर, आप जिस स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं उसके सेक्टर को पहचानिए कि उस किस कैटेगरी में आ रहा है। पावर ग्रिड एनर्जी सेक्टर में आ रहा है। अब मैं जैसे अभी आप लोग को फार्मा में चलते हैं, फार्मा सेक्टर, निफ्टी बैंक आईटी, वेयर इज दैट फार्मा, हियर फार्मा सेक्टर, दिस इज फार्मा सेक्टर। तो आप निफ्टी 50 आपका ब्रॉड है, एनर्जी फार्मा सब मिल के निफ्टी 50 बना है, सारे स्टॉक्स मिल करके निफ्टी 50 बने हैं, फार्मा के स्टॉक्स मिलके फार्मा बनता है सेक्टर। अब यहाँ से फार्मा में हम चलते हैं सिप्ला। सो जब ये नीचे 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 जा रहा है, सो ही गिव्स अ मूव। अब ये निफ्टी का डाउन ट्रेंड और इसका डाउन ट्रेंड क्या एक जगह है? इसने लो लगाया, फार्मा सेक्टर ने जो लो लगाया वो लगाया 11 बजे, 11 बजे निफ्टी ने नहीं लो लगा पाया। जब मेरा सेक्टर और ब्रॉड मार्केट में अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है तो मुझे स्टॉक में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरा सेक्टर और स्टॉक ब्रॉड मार्केट अलाइन होंगे, देन ओनली आई कैन गो फॉर इन द चार्ट ऑफ स्टॉक्स। आप स्टॉक्स के चार्ट तभी देखोगे जब आपका फार्मा और इन ब्रॉड मार्केट ये दोनों चार्ट एक जगह नज़र आएंगे, एक जैसे नज़र आएंगे। तो ये देखना जरूरी है। सो अब आते हैं, हमारा आज का टॉपिक जो स्ट्रीमिंग में चल रहा है वो है जिगजैग। तो जिगजैग जो वर्ड यूज़ हुआ था वो इसलिए यूज़ किया मैंने कि हमको ये अलाइनमेंट चेक करना है कि क्या ये दोनों सेम अलाइन है या नहीं है। तो मेरे को अब ऐसे मैं फिगर देख के कुछ रेड और ग्रीन ये सब बन रहे हैं, इनको देख करके मैं अलाइनमेंट नहीं बताऊंगा, हम इसको जानना चाहेंगे जिगजैग के हेल्प से। सो यहाँ पे जिगजैग आपका फायर्स में इनबिल्ट है। बहुत सबसे मतलब कि अच्छी खासियत बात है कि फायर्स अपने इंडिकेटर को डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, और ये अच्छी खासियत है कि यूज़र फ्रेंडली और लोगों को अच्छे से जाके ट्रेड मतलब कि समझ जो जिगजैग यूज़ करना चाहते हैं। इससे पहले जैसे RSI मूविंग एवरेज का वीडियो था वो भी हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिगजैग का, तो जिगजैग के भी वैसे ही इनपुट स्टाइल कलर जो चूज़ करना चाहें आप, इनपुट्स आपका सेटिंग पे है, आप किस तरह के कितना कैसा जिगजैग यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली अपने ट्रेडिंग के लिए 0.03 का सेटिंग रखता हूँ, और 10 पे का अगर करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या ऐसा कुछ लाइन बनता है। हाँ बन गया तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। आप ये सेटिंग चेंज कर सकते हो, और स्टाइल में अपना कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो रखिए। या तो ये जिगजैग ऐसा कुछ नहीं कि ये परफेक्ट जिगजैग है, दैट्स नॉट ए परफेक्ट जिगजैग, बट एक हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन द सेंस कि आपको जो पैटर्न बनाने के लिए मैंने कहा कि आप कोई भी पैटर्न हमको कुछ इस तरीके से बनता हुआ नज़र आएगा तभी जाके मेरे को दिखेगा। ऐसा पैटर्न ऊपर नीचे ऐसा बनेगा तब जाकर के मैं कहूँगा कि ओके ये पैटर्न चल रहा है मेरा जिगजैग का। ये दिखना चाहिए मार्केट में, ये दिखेगा तभी मैं ट्रेड मेरा हो पाएगा। तो ये जो हाई है
ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई हाई हाई। सो यहाँ पे हम थोड़ा कुछ देखेंगे जिगजैग को समझने के कि मैं हाई 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 या लो 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 बोल रहा हूँ। सो ये होता क्या है और कैसे चलता है ना। व्हेन प्राइस स्टार्ट फ्रॉम हेयर इट गोज देयर, और इसके बाद यहाँ से गिरता है। तो ये पहला पॉइंट है जहाँ पे प्राइस ऊपर जाके नीचे गिरने लग गया। ऐसे जब जहाँ मिलता है तो उसको मैं बोलूँगा कि दिस इज माई फर्स्ट हाई। यहाँ से फिर नीचे गिर के ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट लो। इसके बाद इस लो बनाने के बाद फिर से ये ऊपर जाने लग गया। इस हाई के ऊपर जब हाई गया तो मेरा सेकेंड हाई, दैट वी कॉल्ड एज हायर हाई। फिर जब नीचे आया, फिर जब ऊपर जाने लगा तो मेरे को मिल गया कि ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा सेकेंड हायर लो। हायर हाई कब हुआ? इस हाई के ऊपर गया। हायर लो कब है? जब ये जो लो है इस लो के ऊपर है, तो मेरा हायर लो है। इसी तरह का ये भी हायर है, ये भी हायर लो। ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर है, हायर हाई। ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर है, हायर लो। अब ये पॉइंट जब आया, ये हाई है, ये पॉइंट इस पॉइंट के नीचे है और ये लो बन गया, इससे नीचे चला गया। तो ये हायर लो था यहाँ पे, तो ये लोअर हाई लोअर लो। अब ये लोअर हाई लोअर लो। जब ये पैटर्न ऐसे नज़र आना लग जाएंगे तो हम इस चीज़ को मिलाएंगे सेक्टर और इंडाइसेस को ब्रॉड मार्केट के, कि हायर हाई हायर हाई हायर हाई बन रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बन रहा है। तो मेरे पैटर्न को इन सब चार्ट में नज़र आएंगे, और ये चार्ट ब्रॉड मार्केट में नज़र आएंगे। इस तरीके पैटर्न सेक्टर में आने चाहिए और इंडाइसेस में जाएगा। ब्रॉड मार्केट और सेक्टर का ये पैटर्न फॉर्मेशन मिल जाएंगे तो आप स्टॉक्स में हम लोग देखेंगे इस पैटर्न को बनाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे जिगजैग का यही है कि इन सब जिगजैग्स में, इन सब लाइन में आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कि जैसे यहाँ पे ऊपर प्राइस था, इसके बाद नीचे आया, यहाँ पे आया, प्राइस ने यहाँ पे इस लो के नीचे चला गया, और जैसे प्राइस ऊपर गया फिर वहाँ से जब गिरने लग गया तो मेरा यहाँ से सेल हो गया। बट ये मार्केट का एंड कंडीशन पे मेरे को पता चला, कंफर्म हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। इस दिन मेरे को निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे मैं देखूंगा नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। जैसे ही ऊपर चला गया, इस लाइन के ऊपर चला गया, तो ये हायर हाई बन गया इसके ऊपर अकॉर्डिंग। अब यहाँ से ये लोअर हाई, और जैसे इसके ऊपर गया यहाँ पे हायर हाई बन गया, तो ये पैटर्न मिल गया मेरे को। तो मेरे को ये पैटर्न जब बनता है और ये जब ब्रेक होते हैं, तब जाकर के मैं कंफर्म करता हूँ कि ओके दैट्स, मेरे को अब ये हायर हाई हायर लो पैटर्न्स मिल रहे हैं और इसके हिसाब से काम चलेगा। तो पैटर्न बनाना जरूरी है हायर से हायर लो का। तो यहाँ पे ये जिगजैग है। अब इसी जिगजैग को अगर मुझे कैंडल वाइज कैंडल बनाना है तो हाउ टू चूज, कि मैं कैंडल वाइज कैंडल क्या कहूँगा। नाउ व्हाट इज कैंडल? हम लोग अभी तक जितने भी चार्ट्स देख रहे हैं तो इसमें रेड और ग्रीन कलर्स के दो चीज़ें बनी हुई है, और इसमें रेड और ग्रीन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्रीन कैंडल का प्राइस जो है वो कैंडल के बॉटम पार्ट और जो ये पोर्शन है इस जगह से ओपन होता है और ऊपर जाता है। जैसे आप बड़े फिगर में देखेंगे, यहाँ पे 3-4 कैंडल बने हुए हैं। कोई भी कैंडल होता है वो रेड और ग्रीन या 2 डिफरेंट कलर्स, आप कलर हम लोग बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। कैंडल को चेंज करना कलर है कुछ भी रखें आप, उस सेटिंग में जाएंगे, जैसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सेटिंग है, इस सेटिंग में जाएंगे, बॉडी कलर आप कुछ भी रखिए, मान के चलिए ब्लू रख दिया, और इसको पर्पल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ओके। ये कलर कुछ भी रखें, बट समझना ये है कि मेरा कौन सा कैंडल का प्राइस कहाँ पे खुल रहा है। इस कलर जो ब्लू कलर है इसका ओपनिंग कहाँ हो रहा है, और इस जो पर्पल कलर है इसका ओपनिंग कहाँ हो रहा है।
जो ब्लू कलर का कैंडल है उसका ओपनिंग निचले हिस्से से हो रहा है, और जो पर्पल कलर का ओपनिंग इसके ऊपरी हिस्से से हो रहा है। ये जो डंडा दिख रहा है ये विक कहलाता है कि प्राइस वहां तक गया, जब प्राइस खुला तो उसको वहां तक प्राइस ट्रेवल किया, उसके बाद वापस वहां से लौट आया, अपने ओपन प्राइस पे आया, फिर उसके नीचे गया और नीचे जाके कहीं क्लोज किया। जैसे यहाँ पे इस कैंडल में पहले वो कैंडल की हम देख रहे हैं जो उसके ओपनिंग ऊपर हो रहा है, अब क्लोजिंग नीचे हो रहा है, और ये टाइम फ्रेम में है 5 मिनट्स का। एक कैंडल 5 मिनट का है, ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का, 5 मिनट का, हर कैंडल 5-5 मिनट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस कैंडल में ऑर्डर्स लगते हैं, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, और टोटल ऑर्डर्स जब बाय एंड ऑफ द डे करते हैं तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं कि हाँ इस कैंडल में इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, इतना बाई और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो पर्पल लग रहा है ये इस पोजीशन को ओपन कहते हैं, ये आपका ओपनिंग प्राइस है। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया ओपनिंग प्राइस पे, फिर नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, फिर वापस अंदर आके क्लोज हो गया। तो ये एक परफेक्ट कैंडल है जिसका बॉडी, इस हिस्से को जहाँ पे पर्पल कलर पूरा दिख रहा है उस हिस्से को हम बॉडी कहते हैं। जो स्टिक टाइप का दिख रहा है, डंडा टाइप का दिख रहा है, उसको हम विक कहेंगे। हमारे पास ये एक परफेक्ट स्टेबल कैंडल है जिसका विक ऑलमोस्ट ऊपर और निचला वाला हिस्सा बराबर है, नो डाउट ऊपर नीचे होता है पर बराबर है। बॉडी भी परफेक्ट है, ज़्यादा विक ऊपर नीचे नहीं दिया, जैसे कि अब ये वाला ब्लू कैंडल, ये ब्लू कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। तो मुझे ये पता करना है कि कौन से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस नीचे खुला या ऊपर खुला। जब प्राइस ऊपर खुल रहा है और वहाँ से अपने खुलने के प्राइस से जब वो नीचे क्लोज करता है तो वो रेड कैंडल को सिंबलाइज कर, जैसे इसमें पर्पल कलर सिंबलाइज किया। और कोई कैंडल जो खुल रहा है और जब उसके खुलने के बाद अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो वो ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल के इसमें हम दे रहे हैं। तो हमको ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का कॉन्सेप्ट ये है कि वेन एवर प्राइस closes below its opening price then it's form a red candle. When a price closes above its opening price it forms a green candle or blue candle. तो ये हमारा बुलिश कैंडल कहलाया, ये हमारा बियरिश कैंडल कहलाया। कि प्राइस जहाँ पे खुला उससे नीचे गिर गया, प्राइस जहाँ से खुला उसके ऊपर चढ़ गया, मतलब बुलिश हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक मार्केट बुलिश है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट बियरिश है। तो हमको यहाँ पे कैंडल ये समझना। और विक है कि विक अनस्टेबल जोन है जहाँ से प्राइस क्या होता है, रिजेक्शन लिया, प्राइस ने रिजेक्शन लिया, प्राइस यहाँ से यहाँ तक बायर्स के आके इसको बाई करते करते यहाँ तक ले गया, लेकिन यहाँ पे सेलर्स मिल गया। यहाँ का जो सेलर्स है वो इतना स्ट्रांग है कि प्राइस को नीचे निकल दिया। उसी तरह प्राइस क्या हुआ, जब अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे जा रहा है, जब भी ओपनिंग प्राइस के नीचे जाएगा तो रेड कैंडल बनेगा। वो रेड कैंडल बना रहा था, लेकिन निचले हिस्से में जब गए यहाँ पे इतना स्ट्रांग बाइंग हुआ कि प्राइस को ऊपर धकेल दिया। अब इसी जगह पे एक लाइन खींचेंगे तो हमको दिखेगा कि इतना तेज रिजेक्शन मिला है कि जब भी प्राइस इस जगह पे आएगा यहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आया पहला रिजेक्शन, यहाँ पे आया दूसरा रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन जब यहाँ पे आया ना टूट गया। उसके बाद फिर से वापस नीचे वाला हिस्से में गया और वापस इतना बड़ा विक तो नहीं बनाया तो कैंडल वाइज कराया, फिर वापस इसको तोड़ दिया कि ये जो हिस्सा है इस जगह पे फिर से वापस है, फिर से नीचे टूटा, जब दोबारा फिर से तोड़ा तो अब इसको अगर एक बार टूट के नीचे चला गया तो दोबारा ऊपर नहीं जाना चाहिए था, नीचे चला जाना चाहिए था स्ट्रेट। तो ये हमको तो मतलब कि अपने चार्ट को देख करके पहचानना होता है कि किस जगह से कैसा रिजेक्शन आ रहा है। हमको ये पता है कि इस जगह मॉर्निंग में इस जगह से रिजेक्शन मिला था, इन द मॉर्निंग इस जगह से रिजेक्शन मिला था, तो कैंडल जैसे इस जगह रिच हुआ वापस फॉल हो गया जहाँ से मॉर्निंग में प्राइस उठा था।
यहाँ पे प्राइस गया, वापस फॉल हो गया। तो ये है चीज़ एनालाइज की। तो जिगजैग में, अब जिगजैग जब हम बनाएंगे तो हमको यही देखना है कि इस जिगजैग को कहीं से भी शुरू करेंगे। अगर मैं मैनुअली शुरू करता हूँ तो मैं हाई मार्क करता हूँ। मैनुअली इसलिए कर रहे हैं कि हायर हाई का पता चल जाए। जब नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है, ये हाई यहाँ लगा फिर नीचे कर, तो मैं एक हाई ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि रेफरेंस होना जरूरी है। और रेफरेंस मैं यही इस जगह से ले लेता हूँ। यहाँ से जब नीचे गिरा यहाँ तक, फिर ये ऊपर गया, इस कैंडल का लो नहीं टूटा और ये हाई बना दिया। फिर ये कैंडल का लो टूट गया, यहाँ से लो टूट गया, फिर कैंडल का हाई टूट गया, फिर लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो कैंडल है ये है, यहाँ पे दिख रहा है इस हाई के ऊपर हाई जा रहा है, हर हाई के ऊपर हाई जा रहा है। इसी तरह लो के ऊपर लो 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 शिफ्ट हो रहा है। इस जगह पे लो हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिर उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो ऐसे जिगजैग पैटर्न बना करके हम पैटर्न्स को देखते हैं कि क्या ये हायर हाई फॉर्मेशन है या नहीं है। फॉर जिगजैग फॉर्मेशन, कि जिगजैग हमको बनाना आइदर थ्रू मैनुअली, हम इस जिगजैग पाथ के थ्रू बना सकते हैं। जो फायर्स में इस जगह पे ये पाथ दिया जाता है, इस जगह दिया हुआ है, इसका सहारा ले ले, या फिर जिगजैग इंडिकेटर यूज़ करें। और जिगजैग इंडिकेटर एक बार यूज़ कर लेंगे तो बहुत ही बेनिफिट रहता है ट्रेडिंग के लिए। और इस जिगजैग इंडिकेटर को आप मूविंग एवरेज, आरएसआई, मैकडी, सुपर ट्रेंड, जिसके साथ जो यूज़ करते हैं उसके साथ यूज़ करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। जिगजैग इंडिकेटर बताता है कि आपका जो प्राइस है वो बुलिश है या नहीं है, या वो चेंज हो रहा है। जितने पैटर्न आप हेड एंड शोल्डर, ये सब कप एंड हैंडल, वेजेस, फ्लैग्स, ये सब पैटर्न पढ़ेंगे। असेंडिंग एंड ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रेंड, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये सब जितना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उन सब में जिगजैग आपको नज़र आना लगेगा। और जैसे ही स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे तो आपको जिगजैग की हेल्प से आप अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा जिगजैग की प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। तो जिगजैग के ऊपर ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो आप सभी के लिए, आई विश। और आगे कुछ नया वीडियो होंगे तो उसको जल्दी से अपलोड करेंगे। थैंक यू, बाय।